यीशु मसीह के अजीम कवि और कादरनामे जोसेफ भट्टी की तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शलोम अल मसीह। मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नई ख्वाहिशात और कादियानी मरज़इयों के लिए अक्लो हदायत की दुआ। वारिर और जीसस व्हाट्सएप ग्रुप, वारिर और जीसस यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। एक वीडियो है जी मिर्ज़ा मसरूर की। ये है कादियानियों का खलीफा, मरज़इयों का कादियानियों का खलीफा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मिर्ज़ा कादियानी वो है जिसने मसीहत का दावा किया है कि मैं वो आने वाला मसीह हूँ जिसका इंतज़ार जो मसीही हैं वो कर रहे हैं, यीशु अल मसीह का। तो मैं वो मसीह हूँ। तो ये जो मिर्ज़ा मसरूर है ये उसका खलीफा है, यानी मिर्ज़ा मसरूर का ये खलीफा है। ये कहता है कि जी मैं कादियानी मरज़ई ये कहते हैं कि जिस तरीके से पोप को सिलेक्ट किया जाता है तो उसी तरीके से हमारा जो पोप जो हमारा खलीफा है उसको भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जी खुदाई खलीफा है। तो मिर्ज़ा कादियानी का मानना और मरज़इयों का मानना ये है कि जो भी मिर्ज़ा कादियानी को मानता है उसको जन्नत मिलेगी और नजात मिलेगी। इसकी एक वीडियो मैंने देखी तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर ज़रूर कुछ अपनी लबकुशाई करूँ। तो आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं जी। Not dialogue, interfaith seminars we hold every year in different parts of the world, right? Islam and women is another important issue, usually brought up in contemporary debates. The media never misses a chance to bring that up. It's Petra Otto from ZDF television. I read that the Ahmadi Muslims are adapted to the country they live, or they respect very much all the behaviors of the country they live in. So now today I learned not to shake hands of a man, by example. This is no contradiction. This fits together. Do you think this is the only thing which can integrate us? You see, once a journalist asked me this question in Sweden, I told her that although I do not shake hand, but she was just sitting beside, I do not shake hand because of my religious teaching. But whenever the time comes and you are in need of my help or you are in trouble, then you will see me in the forefront. See? So that is integration. Integration means that we love the country. We should play our role with all our capabilities and potentials for the betterment of the country. We should abide by the law of the land. We should respect each and every citizen of the country who are law-abiding. We should respect, you see, everything of that country. That is true integration. Even, in Judaism, Jews do not, according to the teaching of Torah, they should not shake hands with a woman. And even in United States, just recently, there's a synagogue just nearby their place, and the rabbi announced there that I will not shake hands with women, and nobody raised any question, because if you do it, then it will come to anti-Semitism law. See, but if it comes to the question of Muslims, you are very bold to ask, and we appreciate. We are ready to answer. Khilafat, as seen by the media today, carries mixed connotations. But when a Khalifa is amongst them, the media representatives try to attain a first-hand account. I would like to chip in right here, because you said for example, terrorists, they do not follow the message of Islam. But for example, a caliphate is included in Islam, and there are several terrorists who are trying to establish caliphate right now. And you are also a caliph just without a territory. Would you say that could be an alternative nowadays, that you don't need a territory anymore to have a caliphate? You see, for everything there should be some principle and some logic. And the Khilafat is the successorship. And there is a long tradition of the Holy Prophet of Islam. He said that he is reported to have said that in the latter days, as I have already said, his true follower will come, who will claim himself to be the Messiah and Mahdi, right?
when he claims he foretold some signs, and he asked the Muslims, when you see him, you go and say my salam and my message of peace and love to him. So, and even he said in that tradition that after a certain period of time, the true Khilafat will end. And we can see that almost for more than 1,000 years, the Khilafat did not exist, the true Khilafat. There was some Khilafat in some territories. See, the last Khilafat was in Turkey, right? And in 19 something, that also ended, right, in the 20th century. Because when that person appeared and he claimed himself to be that person whose advent. अच्छा जी, वीडियो देख ली आप तमाम भाइयों ने। इस वीडियो के अंदर मिर्ज़ा मसरूर को एक औरत है जो एक फॉरेनर है, कोई अंग्रेज़ है, उसने ये पूछा है कि क्या आप लोग औरतों से हाथ क्यों नहीं मिलाते, कि ये क्या औरतों की इंसल्ट नहीं है। तो मिर्ज़ा मसरूर उसको ये कह रहा है कि नहीं जी, हम औरतों से इसलिए हाथ नहीं मिलाते क्योंकि हमारा रिलीजियस जो है, हमारा दीन जो है, हमारा मज़हब जो है, वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल होगी तो आप मुझे फ्रंट पे खड़ा देखेंगी और मैं आपको बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आ जाऊंगा कि मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं आप लोगों की हर मुश्किल में मदद करूंगा, लेकिन मैं हाथ नहीं मिला सकता। क्यों? क्योंकि जी ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो आए हम मिर्ज़ा कादियानी के चंद एक हवाला जात देख लेते हैं। उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि मिर्ज़ा मसरूर की भी मैं असलियत बताऊंगा कि ये हाथ मिलाने को कह रहे हैं कि मैं जी हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन जी मैं औरतों की हर जगह मदद करने के लिए तैयार खड़ा हुआ हूँ। यहूदी भी हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ कभी किसी ने कोई बात नहीं की, उनके ऊपर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। जी मरज़इयों के ऊपर एतराज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो मरज़इयों के ऊपर ठीक एतराज़ होता है क्योंकि ये मुनाफिक कौम है। मैं आपको बताता हूँ कि असलियत मरज़इयों की क्या है। अच्छा, हम सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी को देख लेते हैं। मिर्ज़ा कादियानी की किताब है तस्करा, उसका सफ़ा नंबर है 159। इसमें मिर्ज़ा कादियानी की आपको मैं अब हालत बताता हूँ जी। सुबह सादक 4:30 बजे के दिन को मैंने ख्वाब में देखा, एक हवेली है, उसमें मेरी बीवी वालदा महमूद और एक औरत बैठी है। तब मैंने एक मश्क सफ़ेद रंग में पानी भरा और उस मश्क को उठा कर लाया हूँ और वो पानी लाकर मैं अपने घड़े में डाल दिया है। मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुरख और खुश लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। क्या देखता हूँ कि एक जवान औरत है, पैरों से सरता सुरख लिबास पहने हुए, शायद जाली का कपड़ा है। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिए गए थे, लेकिन इसकी सूरत मेरी बीवी किसी मालूम होती है। गोया उसने दिल में कहा कि मैं आ गई हूँ। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे, और फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हुई। उसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। ये है जी इनकी हकीकत। मिर्ज़ा कादियानी औरतों के बारे में गंदे गंदे ख्वाब देखता था कि उसने जाली का कपड़ा पहना हुआ है। जाली के कपड़े के अंदर लाजमी सी बात है कि जाली का कपड़ा है तो लाजमी सी बात है कि उसकी तमाम जिस्म के जो अज़ू हैं वो नज़र आ रहे होंगे, यानी कि उसके पस्तान वगैरह नज़र आ रहे होंगे, उसके पेट से नीचे जो भी मामलात हैं जो अज़ूए ख़ास होते हैं वो नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, बात यहाँ तक नहीं रुकी। फिर मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि वो इसने ये नहीं कहा कि वो मेरी बीवी, इसको उसकी बीवी की तरह शक्ल मालूम हुई, लेकिन इसने कहा कि ये जिस औरत के बारे में मैंने इश्तिहार दिया ये वो औरत है। इश्तिहार किसके बारे में दिया है मैं वो आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि इसने औरत के बारे में देखी ख्वाब, उसके साथ बगलगीर हुआ, और फिर यहाँ तक नहीं रुका। इस बात को इसने अपनी किताबों के अंदर छाप दिया, बाकायदा इश्तिहारों के अंदर, कि ये देखो एक औरत है, उसके बारे में मैं गंदी गंदी ख्वाबें देख रहा हूँ। क्या जिस औरत के बारे में मिर्ज़ा कादियानी गंदी गंदी ख्वाबें देख रहा था उस औरत की इज्जत नहीं है? क्या वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं है? आज मिर्ज़ा मसरूर ये बता रहा है कि जी हम तो जी किसी औरत से हाथ नहीं मिलाते क्योंकि जी हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता। तुम कौन से दीन की बात करते हो? मुसलमानों के दीन की तो तुम तो मुसलमान है नहीं। तुम्हारा मिर्ज़ा तो औरतों के बारे में गंदे गंदे ख्वाब देखता था। आगे चलते जाएं, हवाले सुनते जाएं, आगे चलते जाएं, हवाले सुनते जाएं। था जी, आगे देखें तो तस्करा है, मिर्ज़ा कादियानी की इल्हामी किताब है, सफ़ा नंबर है 160। ये है इसका इल्हाम जनाब 14 अगस्त 1892 का। 14 अगस्त 1892 मुताबिक 20 मुहर्रम सन 1309। आज ख्वाब में मैंने देखा
कि मोहम्मदी बेगम जिसकी निस्बत पेश गोई है बाहर किसी तकिया माँ चंद कस के बैठी हुई है और सर इसका मुंडा हुआ है। अब देखें कि एक औरत है, उसका सर मुंडा हुआ है, मिर्ज़ा कादियानी को ये इल्हाम हो रहा है, ये ख्वाब आ रही है। अच्छा, और बदन से नंगी है और नहायत मकरूश शक्ल है। मैंने उसको 3 मरतबा कहा, तेरे सर मुंडी होने की ये ताबीर कि तेरा खामंद मर जाएगा, और मैंने दोनों हाथ इसके सर पर उतारे और फिर ख्वाब में मैंने यही ताबीर की और उसी रात वालदा महमूद ने ख्वाब देखा कि मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह हो गया है और एक कागज़ मेहरान के हाथ में है जिस पर 1000 रुपया महर लिखा और शीरनी मंगवाएगी और फिर मेरे पास वो ख्वाब में खड़ी है। अच्छा, अब मसला यहाँ पर नहीं ख़त्म होता। देखें, मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मदी बेगम के बारे में इसी की जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, वो इसी के बारे में कि वो नंगी है, उसने जाली के कपड़े पहने और वो मेरे पास आई और मुझसे बगलगीर हुई और मैंने कहा या अल्लाह आ जावे है। और फिर यहाँ पर जो मोहम्मदी बेगम साहिबा हैं, ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी के घर की इज्जत है। और मिर्ज़ा कादियानी इसके बारे में गंदी ख्वाबें देख रहा है। भाई तुम देखते रहो, तुम अपनी किताबों के अंदर छाप रहे हो, इश्तिहार दे रहे हो, किसी औरत के बारे में तुम गंदी गंदी ख्वाबें छाप रहे हो। ये है तुम्हारा दीन, ये है तुम्हारा इस्लाम, ये है तुम्हारा कल्ट। और तुम कहते हो कि हम औरतों से हाथ नहीं मिला सकते, कि औरतों को नंगी नंगी ख्वाबें देखनी और फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं कनात करनी। उसके बाद इनफ ही नहीं है भाई मिर्ज़ा कादियानी के लिए। जब तक मिर्ज़ा कादियानी उस औरत की इज्जत को पामाल नहीं कर लेता, पूरे शहर के अंदर ढिंडोरा नहीं पीट लेता, मिर्ज़ा कादियानी बस नहीं करता। मिर्ज़ा मसरूर आ जाके ये सुना रहा है कि नहीं जी, हम तो इसलिए हाथ नहीं मिलाते कि हमारा दीन इजाज़त नहीं देता, तुम्हारा दीन इसलिए ये इजाज़त देता है तुम्हें कि तुम औरतों के नंगे नंगे और गंदे गंदे ख्वाब देखो और बाद में उसके इश्तिहार शाया करो। अगला हवाला देखते जाएं, सुनते जाएं, मरज़इयों की हकीकत, जोसेफ की ज़बानी। चलें जी, अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, अगले हवाले की तरफ बढ़ते हैं। ये किताब है जी ज़िक्र हबीब, ये मुफ्ती सादक की किताब है। मुफ्ती सादक जो था ये मिर्ज़ा कादियानी का एक बड़ा पक्का और टक्का मरज़ई हवाली था। इसकी किताब के सफ़ा नंबर 38 के ऊपर लिखा हुआ है, इनू कुछ दिसदा है, ये इसका टाइटल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत मसीह मौत के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हज़रत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के घड़े रखे थे। वहाँ अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लग गई। हज़रत साहब अपने काम में तहरीर में मसरूफ़ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आ निकली। उसने इस नीम दीवानी को मलामत की कि हज़रत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो इसने हंसकर जवाब दिया, इनू कुछ दिसदा है, यानी इसे क्या दिखाई देता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत गज़ बसरा की जो हर वक्त मुशाहदा करती थी, इसका असर इस दीवानी औरत पर भी ऐसा था कि वो ख्याल करती थी कि हजूर को कुछ दिखाई नहीं देता, इसी वास्ते हजूर के सामने किसी पर्दे की ज़रूरत ही नहीं। अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती जी, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिर्ज़ा कादियानी के सामने एक नंगी औरत बैठ के नहा रही है। ये इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वो नीम दीवानी थी। अच्छा, इतनी नीम दीवानी थी, उसको पता ही कौन नहीं था कि वो मिर्ज़ा कादियानी के सामने बैठ के नंगी नहा रही है। मिर्ज़ा मसरूर कहता है, हम औरतों से हाथ नहीं मिलाते, इनके नबी के कमरे के अंदर बैठ के नंगी औरतें नहाती थीं और वो कहती थी ए ते अन्ना है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, इसको कुछ नज़र ही नहीं आता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिर्ज़ा कादियानी कानी आँख से देखता ना हो। मिर्ज़ा कादियानी तो वो आदमी था जो दीवार के आर पार भी छेद करके देख लेता था कि बराबर वाले कमरे के अंदर पखाना पड़ा हुआ है, और इसको इल्हाम हो जाता था कि खादमा ने जी पखाना नहीं उठाया, गलाजत नहीं उठाई, और मिर्ज़ा कादियानी के सामने बैठ के औरत नंगी नहा रही है। ये है जी इनके पर्दे का कानून, और इनके मज़हब के अंदर जो पर्दा है वो है जी ये। और मिर्ज़ा मसरूर कह रहा है कि जी हम तो औरतों से इसलिए नहीं हाथ मिलाते क्योंकि हम औरतों की इज्जत करते हैं। अगले हवाले की तरफ बढ़ते हैं जी।
चलें जी, अगला हवाला देख लेते हैं जी। सीरतुल मेहदी है ये, और इनका किस्सा नंबर है 688, स्टोरी नंबर 688। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल जो था वो मिर्ज़ा कादियानी का रिश्तेदार था। इसकी जितनी भी रवायतें हैं इसको मिर्ज़ा कादियानी के मानने वाले रद्द नहीं कर सकते। मुझसे बयान किया कि डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब लाहौरी की एक बीवी डॉक्टरनी के नाम से मशहूर थी। वो मुद्दतों कादियान आकर हजूर के मकान में रही और हजूर की खिदमत करती रही। अब देखें कि औरतें खिदमत कर दी हैं। मसरूरा कह रहा है कि हम औरतों से हाथ नहीं मिलाते, या मिर्ज़े कादियानी ने जनानियाँ रखी हुई हैं खिदमत करने के लिए। इस बेचारी को सिल की बीमारी थी। जब वो फौत हो गई तो उसका दुपट्टा हजरत साहब ने दुआ के लिए याद दहानी के लिए बैतुल दुआ की खिड़की की एक आहनी सलाख से बंधवा दिया। खाकसार अर्ज करता है डॉक्टरनी मरहुमा बहुत मुखलसा थी और इसी वजह से डॉक्टर साहब का इखलास भी तरक्की कर गया। आप मिर्ज़ा कादियानी की हरकतें देखें, ठरकी नंबर 1। इसके ठरक की इंतहा देखें कि औरतें, किसी की बीवी है वो आके मिर्ज़ा कादियानी की खिदमत कर रही है। और फिर मिर्ज़ा कादियानी जब वो फौत हो गई है, उसको सिल की बीमारी थी, वो फौत हो गई, तो उसका दुपट्टा मिर्ज़ा कादियानी ने आनी सलाह से बनवा दिया कि चलो मैं दुपट्टे से ही ठरक पूरा करता रहूँ। ये है जी कादियानियों मरज़इयों के पर्दे का हुक्म और पर्दे का मज़हब इनका, कि जी इनकी शरीयत के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी तो औरतों के घेरे के अंदर रहता था 24 घंटे के, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। ये है मिर्ज़ा कादियानी। और ये मिर्ज़ा मसरूर कह रहा है कि जी हम औरतों से इसलिए हाथ नहीं मिलाते कि इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। तुम्हारा इस्लाम से लेना देना क्या है? अगले हवाले की तरफ बढ़ते हैं जी। ये है सीरतुल मेहदी। फिर इनके ये स्टोरी नंबर 780 780। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुल मेहदी है जी, हिस्सा सोम है, सफ़ा 722 है, स्टोरी नंबर है 780। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वही डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने एक दिन सुनाया कि हज़रत साहब के यहाँ एक बूढ़ी मुलाजमा मसमात भानो थी। वो एक रात जबकि खूब सर्दी पड़ रही थी हजूर को दबाने बैठी। चूंकि वो लिहाफ के ऊपर से दबाती थी इसलिए उसे पता ना लगा कि जिस चीज़ को मैं दबा रही हूँ वो हजूर की टांगे नहीं बल्कि पलंग की पट्टी है। थोड़ी देर के बाद हजूर साहब ने फरमाया, भानो आज बड़ी सर्दी है। भानो कहने लगी, हाँ जी, तद्दी ते तहाड़ियाँ लत्ता लंगड़ी लकड़ी वांगर होइयां ऐ, यानी जी हाँ, जभी तो आपकी लातें लकड़ी की तरह सख्त हो रही हैं। खाकसर अर्ज करता है कि हजरत साहब ने जो भानों को सर्दी की तरफ तवज्जो दिलाई तो उसमें भी गालिबन ये जताना मकसूद था कि आज शायद सर्दी की शिद्दत की वजह से तुम्हारी हंस कमज़ोर हो रही है और तुम्हें पता नहीं लग रहा कि किस चीज़ को दबा रही हो। मगर उसने सामने एक और ही लतीफ़ा कर दिया। नेज़ खाकसर अर्ज करता है कि भानो मज़कूरा कादियान के एक करीब के गांव बसरा की रहने वाली थी और अपने माहौल के लिहाज से अच्छी मुखलसा और दीनदार थी। ये है जी। अब आप देखें कि मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है कि तुम मेरी टांगों को टच नहीं कर रही, मुझे आज वो लस्ट नहीं आ रहा, मुझे आज वो मज़ा नहीं आ रहा। मिर्ज़ा कादियानी उसका ध्यान पवा रहा है कि ध्यान कर इधर, मेरियां लत्तां दबा, मेरे पैर दबा, अपने नरम नरम हाथ पपोटे मेरे अपने मेरी टांगों के ऊपर, मेरी पिन्नियों के ऊपर, मेरी रानों के ऊपर लगाओ ताकि मुझे मेरा ठरक जो जागा हुआ है मेरा ठरक पूरा हो। है इतना ठरकोल आदमी ये कह रहे हैं कि हम औरतों से हाथ नहीं मिलाते। मिर्ज़ा कादियानी औरतों से टांगे दबाता था और फिर उनका ध्यान पड़वाता था यहाँ पे कि ध्यान करो इधर, अपनी ड्यूटी जड़ी तोड़ी ये कि मैंने इतनी सारी जनानियाँ रखी हुई हैं ठरक के लिए, ओ भाई मेरा ठरक पूरा करो, मेरे ठरक को ख़त्म करो। इसको ठरक का कीड़ा था मिर्ज़ा कादियानी को। और ये कह रहा है कि जी हम तो औरतों से हाथ नहीं मिलाते क्योंकि हमें इस्लाम की अंदर इजाज़त नहीं है जी। चलें आगे सुनते सुनते आप चलते जाएं सुनते जाएं। आज जी ये है जी मरकातल अल यकीन फ़ी हयातु नूरुद्दीन। इस किताब के अंदर मैं अब इनके पर्दे के और इनकी ख़वातीन के ज़रा नमूने आपको पेश कर दूँ। मिर्ज़ा कादियानी की बीवी कहती है कि बीबी साहब उसके मुँह से लोगों ने सुना, अच्छा जी, बीवी साहिबा के मुँह से 20 मरतबा मैंने सुना कि मैं तो आपकी लौंडी हूँ। जी किसकी लौंडी? हकीम नूरुद्दीन की।
मिर्ज़ा कादियानी की बीवी जो है वो हकीम नूरुद्दीन की लौंडी बनती थी। ये है जी इनका कादियानियों का पर्दा कि बीवी मिर्ज़ा कादियानी की है, लौंडी वो हकीम नूरुद्दीन की बन रही है। आखिर तुम्हारा शौहर क्या मर गया है कि तुम किसी और आदमी की लौंडी बन रही हो? आप नाम देखें, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन हकीम नूरुद्दीन, मिर्ज़े के पुत्र की आप शक्ल देखें, आपको बिल्कुल मिर्ज़े के कादियानी के यार के जैसी उसकी शक्ल नज़र आएगी। हमारा ये कहना है कि मिर्ज़ा कादियानी नामर्द था, उसके अपने बच्चे नहीं थे, इसीलिए मिर्ज़ा कादियानी की बीवी कहती थी कि मैं हकीम नूरुद्दीन की लौंडी हूँ। और आगे से मिर्ज़ा कादियानी का जो बेटा है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन हकीम नूरुद्दीन, आप इन दोनों की शक्लें देख लें, हकीम नूरुद्दीन की और बशीरुद्दीन की, इनकी शक्लें भी एक जैसी हैं। चूँकि ये कहते हैं कि जी वो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है, लेकिन असल में वो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा नहीं है। हमें ये लगता है कि वो हकीम नूरुद्दीन का बेटा है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की बीवी कहती थी कि जी मैं हकीम नूरुद्दीन की लौंडी हूँ। तुम ये कह रहे हो कि हम जी औरतों से हाथ नहीं मिलाते। ओ भाई, तुम्हारे तो नबी की बीवी किसी और की लौंडी बनती थी, तुम्हारे नबी के यार की लौंडी बन रही है वो, और तुम कह रहे हो कि हम औरतों से हाथ नहीं मिलाते। आगे चलें जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके कादियानियों मरज़इयों के पर्दा, इनकी औरतें पर्दा कैसे लेती थी करती थी या लेती थी। कादियानियों मरज़इयों के अंदर जो खातून अव्वल है वो है नुसरत जहाँ बेगम, जो कि मिर्ज़ा कादियानी के यार की लौंडी बनती थी। अब उसके पर्दा लेने का तरीक़ाकार देखें जी, हम आपको सुनाते हैं। सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 56 है और किस्सा नंबर है 77। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल ने कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मौद किसी सफ़र में थे, स्टेशन पर पहुँचे, अभी गाड़ी आने में देर थी। आप कौन जी? आप बीवी साहिबा के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। ये देखकर, अब ये देखें कौन ये देखकर मौलवी अब्दुल करीम साहब, जिनकी तबीयत गयूर और जोशीली थी, मेरे पास आए और कहने लगे, बहुत लोग और फिर गैर लोग इधर उधर फिरते हैं, आप हजरत साहब से गर्ज करें कि बीवी साहिबा को कहीं अलग बिठा दिया जावे। मौलवी साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा, मैं तो नहीं कहता, आप कह लें, कह कर देख लें। नाचार मौलवी अब्दुल करीम साहब खुद हजरत साहब के पास गए और कहा, हजूर बहुत लोग बहुत हैं, बीवी साहिबा को अलग एक जगह बिठा दें। हजरत साहब ने फरमाया, जाओ जी, हम ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ। मौलवी साहब फरमाते हैं, इसके बाद मौलवी हकीम साहब ने सर नीचे डाले मेरी तरफ आए। अच्छा जी, अब देखें मज़े की बात देखें कि एक गयूर और गैरतमंद आदमी मिर्ज़ा कादियानी को कह रहा है कि खुदा का खौफ कर, बंदे का पुत्र बन, बगैरता अपनी बीवी को कहीं साइड पे बिठा दे। क्यों अपनी बीवी का जिस्म लोगों के साथ लोगों को दिखा रहा है? मिर्ज़ा कादियानी किसे कहता है, जा निकल जा यहाँ से, मैं कोई ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ, मेरी बीवी फैशनेबल है, वो हाफ स्लीव्स पहने, वो भले बिकनी पहने, वो भले स्कर्ट पहने, वो भले ब्लाउज पहने, तुझे क्या मसला है? उसका जिस्म है, उसकी मर्ज़ी है। असल में ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला जो आज नारा लगाया जाता है, ये कादियानियों की जो अम्मा है नुसरत जहाँ बेगम, ये वहाँ से आया है। ये है जी कादियानियों का पर्दा। ये गोरों के सामने जाके कह रहा है कि जी हम तो इसलिए नहीं हाथ मिलाते क्योंकि हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता। और भाई, तुम्हारा मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है कि मैं तो पर्दे का कायल ही नहीं हूँ। आगे चलते हैं जी। चलें जी, अगले हवाले की तरफ बढ़ते हैं। सीरतुल महदी सफ़ा नंबर 204 हिस्सा पंजम, स्टोरी नंबर है 1350। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत बीबी साहिबा एहलिया हकीम मौलवी रहीम बख्श साहब मरहूम साकना तलवंडी ने बवस्ता लजना अम्मा अल्लाह का दयान बजरिया तहरीर बयान किया कि एक दिन आप लेटे हुए थे। कौन लेटा हुआ था? मिर्ज़ा कादियानी लेटा हुआ था और मैं पैर दबा रही थी। बरकत बीबी जो है वो पैर दबा रही है, मिर्ज़ा कादियानी लेटा हुआ है। कई तरह के फल, लीचियाँ, केले, अंजीर और खरबूजों में से आपने मुझे बहुत से दिए। मिर्ज़ा कादियानी देखे पूरी अयाशी, शराब, कबाब, जना, खोर, एक नंबर का, ये आप इसको कह लें कि ठग ठरकी, सारी चीज़ें मिर्ज़ा कादियानी के अंदर आपको मिल जाएंगी। औरतें, गैर औरतें इसके पाँव दबा रही हैं। सामने फ्रूटों की ढेरियाँ लगी हुई हैं,
लीचियाँ पड़ी हैं, खरबूजे पड़े हुए हैं, और केले और आड़ू और अंगूर और संतरे और गुलाब जामुन, ये वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, अब मैंने इनको बहुत संभाल के रखा कि ये बाबरकत फल है, मैं इनको घर लेकर जाऊंगी ताकि सबको थोड़ा थोड़ा बतौर तबर्रक के दूँ। मैं जाने लगी तो हजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वाई बरनम दे दो, इसके रहम में दर्द है। एक्सट्रैक्ट वाई बरनम लिक्विड एक दवा रहम की इसलाह के वास्ते होती है। ये मुझे याद नहीं कि किसने दवा ला कर दी। हजूर ने 10 कतरे डालकर बताया कि 10 कतरे रोज़ सुबह को पिया करो, मैं घर जाकर पीती थी। रुकें जी यहाँ पर सारे के सारे, अब देखें यहाँ पे किस्सा क्या चल रहा है। एक औरत है, मिर्ज़ा कादियानी, टांगे लातें अपनी जो है वो चौड़ी करके लेटा हुआ है, उसके सामने साइड पे एक टेबल है जिसके ऊपर अंगूर, लीचियाँ, केले, खरबूजे, दुमाणे हैं जी, अनानास और दुनिया की तमाम आसाइशें रखी हुई हैं। औरत जो है वो किसी की मरहुमा है, बरकत बीबी, वो मिर्ज़ा कादियानी के पाँव दबा रही है। अच्छा, अब वो दबाती जा रही है। मिर्ज़ा कादियानी के मामे ने मिर्ज़ा कादियानी को बताया है कि उसके रहम के अंदर दर्द है। मिर्ज़ा कादियानी के अपने दस्त और अपने मिर्ज़ा कादियानी के पिछवाड़े के अंदर से खून इसका रुकता नहीं था, उसका ये इलाज हुआ नहीं इससे। मिर्ज़ा कादियानी को किसने बताया कि इस औरत के बरकत बीबी के रहम के अंदर दर्द है। मिर्ज़ा कादियानी की बीवी क्यों नहीं मिर्ज़ा कादियानी के पाँव दबा रही, गैर औरतें क्यों मिर्ज़ा कादियानी के पाँव दबा रही है। मिर्ज़ा कादियानी की बीवी मर गई थी हैं कि जो इसके पाँव नहीं दबा सकती। मिर्ज़ा कादियानी की बहनें कौन नहीं थी जो इसके पाँव दबाती। गैर औरतें, गैर महरम औरतें मिर्ज़ा कादियानी के पाँव दबा रही हैं और ये कहते हैं कि जी हम पर्दे का ख़ास इंतज़ाम और हम जी इसलिए औरतों से हाथ नहीं मिलाते, क्यों हमारा जी इजाज़त नहीं देता मज़हब। ये तुम्हारा तो नबी जो है वो गैर महरम औरतों से दबाता होता था। फिर यहाँ नहीं रुका, उसके बाद देखें कि मिर्ज़ा कादियानी को यहाँ तक पता है कि उसके रहम के अंदर दर्द है, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द है, और अपनी बीवी को कह रहा है कि जाओ दवाई लेके आओ। अपनी बीवी को कह के इधर आओ, मुझे दबाओ सीधा सीधा हैं। आगे बढ़ते हैं जी अब। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो आपको ये मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा, वैसे साफ नज़र आ रही है। ये है जी इनका कादियानियों मरज़ियों का इमाम, इसका नाम है इब्राहिम नोनन। ये कहता है कि मैं पहले क्रिश्चियन था और मैंने थियोलॉजी और फलान और ढमकान और मैंने डिविनिटी पे मैंने जी बड़ी सारी डिग्रियां हासिल की हैं। बाद में ये कादियानी मरज़ई हो गया। ये आयरलैंड का है, यूके का है, कभी अपने आप को आयरलैंड का कहता है, कभी यूके का। बहरहाल ये इसकी तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ। ये कादियानियों मरज़इयों का इमाम है। मिर्ज़ा मसरूर के साथ ये अक्सर ज़्यादा नज़र आता है। ये यहाँ पर एक औरत से जिसने स्लीवलेस एक स्कर्ट पहना हुआ है और उसके साथ ये खड़ा हुआ है और बड़े तमीज़, बड़े आराम से ना देखें आप, एक औरत यहाँ खड़ी हुई है एक शाने के साथ, बाकी 2 औरतें साइड पे खड़ी हुई हैं। बीच वाली जो औरत है उसके साथ ये हाथ मिला रहा है। मिर्ज़ा मसरूर कहता है जी हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम हाथ मिलाएं। अब मैं आपको मिर्ज़ा मसरूर की असलियत बताता हूँ कि मिर्ज़ा मसरूर कह रहा था कि मैं जी फोर फ्रंट पे किसी औरत को मसला होगा तो मैं उस औरत के साथ खड़ा होऊंगा। अब ये कितना अपनी जमात की औरतों के साथ खड़ा होता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैं अब आपको मिर्ज़ा मसरूर की और निदा नसर इनकी एक ऑडियो सुनाता हूँ जिसके अंदर मिर्ज़ा मसरूर की सारी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी कि ये लोग कितने मुनाफिक हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा दूँ। एक खातून है निदा नसर, ये कादियानियों के खलीफा मिर्ज़ा ताहिर की नवासी है। निदा नसर के साथ मिर्ज़ा मसरूर जो ये औरतों को कह रहा है कि मैं औरतों के साथ खड़ा होता हूँ और हम औरतों के साथ हाथ नहीं मिलाते, उसके साले ने रेप किया और वो जब वो इनके साबका खलीफा की नवासी है, वो जब मिर्ज़ा मसरूर के पास अपने दुख की दास्तान लेके पहुंची तो मिर्ज़ा मसरूर उसको क्या कह रहा है सुने जी। अब ये जी हाँ, ये इन दोनों की बातचीत हो रही है जी। अब वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ जी, ये देखें आप, मिर्ज़ा मसरूर उसको कह रहा है औरत को कि जल्दी जल्दी बात कर लो जो भी तुमने करनी है। ये इनके साबका खलीफा की नवासी है जी, जिसके साथ मिर्ज़ा मसरूर का ये रवैया है और सामने औरतों को कह रहा है कि आपके साथ को मुश्किल होगी तो मैं आपके साथ फोर फ्रंट पे खड़ा होऊंगा, लेकिन अपनी जमात
और जमात की खातून भी कौन जी, इनके साबका खलीफा की नवासी, वो रिक्वेस्ट कर रही है तो उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। सुने आगे। अच्छा क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई फैट चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये अच्छा जी, इसकी आवाज़ काफ़ी कम है मिर्ज़ा मसरूर की। मैं आपको बताता हूँ जी, वो औरत कह रही है कि अल्लाह ताला कहता है कि फहाशी को ना छुपाओ, फहाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। मज़लूम को कहीं पर भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम चुप रहो, मज़लूम को कहा कि तुम आवाज़ बुलंद करो ज़ालिम के ख़िलाफ़। मिर्ज़ा मसरूर उसको क्या कह रहा है, अच्छा जी वो फहाशी को जी फहाशी नहीं करनी चाहिए फ़लान ढमकान, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म पे जाके दरख्वास्त दो तुम। तो भाई तुम क्यों औरतों के सामने जाके कह रहे हो कि अगर किसी औरत को कोई मुसीबत होगी तो मैं फोर फ्रंट पे खड़ा होऊंगा, या इस औरत के साथ तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे? आगे सुने जी। कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इग्नोर किया, और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा सब करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक कहता है कि नहीं मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था। अच्छा ये कह रहा है, अब ये बात को घुमा रहा है दूसरी तरफ कि किसी ना किसी तरीके से मेरे साले की जान छूट जाए, क्योंकि इसके साले ने इस औरत के साथ जना किया था। ऑडियो में आवाज़ कम आ रही, मैं आपको आगे चल के बताता जाता हूँ, ज़रूरत नहीं ऑडियो चलाने की, ऑडियो हमारे पास मौजूद है, किसी को कोई एतराज़ होगा हम ऑडियो पेश कर देंगे। इस औरत ने जब मिर्ज़ा मसरूर को कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो मिर्ज़ा मसरूर उसको कहता है तुम चुप कर जाओ, तुम इस बात को दबा दो, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। मिर्ज़ा मसरूर निदा उल नसर के साथ कतई तौर पे खड़ा नहीं हुआ, और ये जाके मीडिया को, अंग्रेज़ों को ये कह रहा है कि मैं जी हर औरत के साथ जिसके साथ जुल्म होता है मैं खड़ा होऊंगा, फोर फ्रंट पे खड़ा होऊंगा। ये है जी कादियानियत मर्ज़ियत। ये इस तरफ मैं आपका ध्यान डलवाना चाह रहा हूँ, इस तरफ आपको मुतवज्जा करना चाह रहा हूँ। अब कादियानी मर्ज़ी कहते हैं कि जोसेफ अनकरीब मर जाएगा, जोसेफ अनकरीब मर जाएगा, हम जोसेफ को या तो मार देंगे या जोसेफ के लिए हम दुआएं कर रहे हैं, हम टेवे लगा रहे हैं, हम तावीज़ गंडे और जादू कर रहे हैं, ये मर जाएगा। ओ भाई जोसेफ एक मरेगा, 1000 जोसेफ खड़े होंगे। हमारे तक एक एक चीज़ की रिपोर्ट पहुंचती है कि तुम क्या समझ रहे हो कि तुम आपस में बैठ के मीटिंगें कर रहे हो कि जोसेफ को किसी तरीके से मारो और जोसेफ चुप हो जाए। एक जोसेफ मरेगा, 1000 जोसेफ खड़े होंगे। इसी हो सकता है कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक जोसेफ खड़े हो। मैंने तो अभी कोई काम नहीं किया। यस्सु अल मसीह के मानने वालों का आपको अभी गैरत का अंदाज़ा नहीं है, जोश का अंदाज़ा नहीं है। मेरी यहीं पे बात ख़त्म होती है। मैं अपने तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस भाई ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा चैनल सुफियान BM यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाके उसको भी लाजमी देखें, वहाँ पर भी रद्द कादियानियत का काम हो रहा है। जोसेफ भट्टी की तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शलोम अल मसीह और मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बारूक हशीम। जीते रहें, आबाद रहें जी।